Hello learners, myself is Anjali Daryal from Satyavati College, University of Delhi. I welcome you all to this learning session. Today we will discuss the contract of agency. As you all know that due to growing complexity of business, no person can act on his own for all the activities. So how it can be sorted out? So therefore there is a need to delegate the authority, and the authority to which person is delegated is known as agent, and the person who delegates the authority is known as the principal, and the relationship between these two is known as the creation of agency, or you can call the relationship of agency. That, like you can see in this diagram, that there is one person P who on behalf of who tells an agent A on his behalf to purchase some goods from third party on credit. So principal and agent, they are related with each other, and the relationship with which they are related to each other are known as the agency creation. And there is a relationship established between the principal and third party as well, because agent act as a link between the principal and third party. Therefore a privity of contract is established, and principal is bound to perform all the activities which is done by the agent. So as per the definition according to the section 182 of the Act, that agent is a person employed to do any act for another or to represent another in dealing with the third person. The person for whom such an act is done is so represented is called principal. Now the question is that who can appoint an agent? Section 183 provides that any person who is of the age of maturity and who is of sound mind can employ an agent. So the meaning hereby is that a minor or a person of unsound mind cannot be appointed as principal, or in other words he cannot act as a principal. Then the next question is that who can be an agent? According to the section 184, any person may become an agent. So meaning hereby that any person who is not the age of majority and who is not of sound mind, even that person can become an agent. So is it worth, or is it it should be? So question is that it should not be there, because by this way the principal will involve himself in a risk for himself. For example, हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए प्रिंसिपल ने एजेंट को ये कहा जो कि अनसाउंड माइंड का है कि आप इस रिंग को किसी भी हिसाब से 11,000 रुपये से कम में नहीं बेचोगे, और एजेंट जो कि अनसाउंड माइंड का है उसने फिर भी उस रिंग को 5,000 रुपीज़ में सेल आउट कर दिया क्रेडिट पर सी को। अब प्रिंसिपल जो है सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाइंड है, क्योंकि एजेंट की तरह काम किया है बी ने, भले ही वो अनसाउंड माइंड का है। तो इस तरह से अल्टीमेटली सारा लॉस किसका हुआ? इसमें अल्टीमेटली सारा लॉस जो है वो प्रिंसिपल का हुआ 6,000 रुपीज़ का। एंड द वर्स्ट पार्ट इट कि वो उससे क्लेम भी नहीं कर सकता, एजेंट से क्लेम नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कॉशियसली रूल यही कहता है कि प्रिंसिपल को अनसाउंड माइंड या जो इमेच्योर पर्सन है जिसने मेच्योरिटी की एज को अटेन नहीं किया है उसको एज एजेंट अपॉइंट नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी एंड कंसिडरेशन फॉर एजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन एजेंसी को कॉन्स्टिट्यूट 3 तरह से किया जा सकता है, या तो एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट के थ्रू, या इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ के थ्रू, या फिर सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन के थ्रू। और जहाँ तक बात कंसिडरेशन की है, तो कंसिडरेशन में हम ये कहते हैं कि कंसिडरेशन इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। प्रिंसिपल जो है वो एग्री कर रहा है अपने एक्ट से एजेंट को बाइंड करने के लिए, अपने एजेंट के बाइंड से थर्ड पार्टी, एजेंट के एक्ट से थर्ड पार्टी को बाइंड करने के लिए, सिर्फ वही उसका पूरा का पूरा कंसिडरेशन है। क्रूशियल टेस्ट ऑफ स्टेटस क्या है कि एजेंसी जो है, एजेंसी में एजेंट जो है अपने एक्ट से प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है, यही हमारा प्रूफ ऑफ एजेंसी वे है। अब हम ये कह सकते हैं कि एजेंट जो है उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सर्वेंट से मिलते हैं। तो क्या एजेंट और सर्वेंट सेम हैं? नहीं, एजेंट और सर्वेंट में बहुत से डिफरेंस हैं। जैसे कि पहला डिफरेंस हम डिस्कस करते हैं अथॉरिटी का,
देखिए, एजेंट के पास अथॉरिटी है कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई भी एक्ट करे और थर्ड पार्टी से उसको बाइंड कर सकता है, लेकिन सर्वेंट जो है उसके पास इस तरह की कोई भी अथॉरिटी नहीं होती कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करे। दूसरा है नंबर ऑफ़ मास्टर्स। नंबर ऑफ़ मास्टर्स में ये है कि एक एजेंट जो है वो बहुत सारे प्रिंसिपल्स उसके हो सकते हैं, उसके वो बहुत सारे लोगों के लिए एज एन एजेंट एक्ट कर सकता है, लेकिन सर्वेंट जो है वो कभी भी उसके नंबर ऑफ़ मास्टर्स ज़्यादा नहीं होते, वो जनरली एक ही मास्टर के अंडर काम करता है। थर्ड पॉइंट है सैलरी और कमीशन। एजेंट जो है उसे उसके काम के लिए कमीशन में दिया जाता है, जबकि सर्वेंट को उसके काम के लिए सैलरी या वेजेस दी जाती हैं। इसी तरह से अगर हम कहें कि एजेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर क्या ये सेम है? नो। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और एजेंट में भी डिफरेंस है, जैसे कि डायरेक्ट कंट्रोल। एजेंट जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल होता है प्रिंसिपल से, लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कभी भी प्रिंसिपल से डायरेक्टली कंट्रोल्ड नहीं होता, वो उसके अंडर काम नहीं करता, उसका काम करने का अपना एक इंडिपेंडेंट तरीका है। दूसरा है कैन बाइंड द एम्प्लॉयर। एजेंट अपने काम से, अपने एक्ट से प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपने काम से बाइंड नहीं कर सकता। नाउ agency can be created in different ways. Agency can be created by appointment, it can be created by conduct, it can be conducted by ratification, or it can be conducted by operation of law, which we will discuss one by one. For example, first we will discuss the agency by express agreement. जैसा कि section 187 बता रहा है कि an authority is said to be express when it is to be given by words, spoken or written. जब हम शब्दों में बोलकर या लिखकर अथॉरिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो वो होती है अथॉरिटी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। जैसे अब हम एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ए एक प्रिंसिपल है और वो दिल्ली में रहता है, बी एक एजेंट है और वो चंडीगढ़ में रहता है, और ए का चंडीगढ़ में एक फार्म हाउस है और उसने ए ने जो कि प्रिंसिपल है उसने एजेंट बी को एम्प्लॉय किया है थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी कि आप मेरे फार्म हाउस की देखभाल करेंगे। तो ये दोनों के बीच में एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट है थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम नाम देंगे एक्सप्रेस एग्रीमेंट, एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। उसके बाद दूसरी तरह का जो हमारे पास क्रिएशन ऑफ एजेंसी की टाइप आती है वो आती है इम्प्लाइड एजेंसी। सेक्शन 187 ही डिफाइन करता है इम्प्लाइड एजेंसी के बारे में भी। वो ये कहता है कि एन एजेंसी इज सेड टू बी इम्प्लाइड व्हेन इट इज़ टू बी इन्फर्ड फ्रॉम सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस and the things spoken or written or the ordinary course of dealing. For example, मान लीजिए दो भाई हैं, एक भाई है ए, एक भाई है बी। ए जो है वो दिल्ली में रहता है, बी रहता है आगरा में। जो बी है ब्रदर, उसका दिल्ली में भी एक फ्लैट है। ए ने क्या किया, उस फ्लैट को रेंट पे दे दिया, लेट आउट कर दिया रेंट पे, और लेटर ऑन जब उसका रेंट रिसीव हुआ, उस रेंट को रियलाइज़ करने के बाद उस रेंट को उसने बी के अकाउंट में जमा करा दिया। बी ने उस रेंट को निकाला और यूज़ कर लिया। अब इस केस में दोनों के बीच में कोई भी एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन ये केस है इम्प्लाइड एजेंसी का, क्योंकि ए ने बी के एजेंट के तौर पे काम किया है और एजेंट के तौर पे काम करने से उसको कमीशन जो है उस काम के लिए मिलना चाहिए, और ये एक एग्रीमेंट ऑफ इम्प्लाइड एजेंसी का केस बनता है। ये जो एजेंसी इम्प्लाइड एजेंसी है, ये इस डिफरेंट तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तीन तरह की मेनली ये इम्प्लाइड एजेंसी होती है। पहला है एजेंसी बाय एस्टॉपल, सेक्शन 237। एजेंसी बाय एस्टॉपल को समझने के लिए सबसे पहले हमें रूल ऑफ एस्टॉपल जो है वो समझना चाहिए। रूल ऑफ एस्टॉपल ये कहता है कि वेयर अ पर्सन बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट लेड other person to believe that the certain set of facts exists and other person acted on that belief. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक पार्टी है, उस पार्टी में बहुत सारे लोग हैं और तीन लोग आपस में एक साथ खड़े हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। मिस्टर ए मिस्टर बी को ये कहता है कि मैं सी का एजेंट हूँ। अब सी वहीं पे खड़ा है, सी ने सब सुना है, लेकिन सी इसके ऊपर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद कुछ दिनों के बाद बी जो है ए से कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस बात को बिलीव करते हुए कि वो सी का एजेंट है। तो यहाँ पर इम्प्लाइड एजेंसी का रूल जो है वो एप्लीकेबल होगा, और बी जो है
वो बाइंड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए सी को, क्योंकि ए ने एज एजेंट काम किया है। तो इस तरह से ये एजेंसी बाय एस्टॉपल का केस है। दूसरा आता है एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। एजेंसी बाय होल्डिंग आउट भी ऑलमोस्ट सेम है, ये भी एक तरह का एजेंसी बाय एस्टॉपल है। सिर्फ इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि जैसे एजेंसी बाय एस्टॉपल में जो प्रिंसिपल है वो रिएक्ट नहीं करता, वो साइलेंट रहता है, वो कुछ भी नहीं कहता। लेकिन एजेंसी बाय होल्डिंग आउट में प्रिंसिपल जो है वो अपनी पॉजिटिव एफर्मेशन देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए एक प्रिंसिपल है और उसने बी को अपने यहाँ पर एजेंट रखा है, और बी ने सी से कुछ माल खरीदा क्रेडिट पर और बाद में ए ने उस माल का पेमेंट कर दिया। इसका मतलब ये है कि बी जो है वो सच में ए का एजेंट है। बाद में कुछ समय के बाद ए ने जो कि प्रिंसिपल था बी को जो कि एजेंट था उसको नौकरी से निकाल दिया, और कुछ समय के बाद बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया सी के साथ में, ये और सी ने इस बात को बिलीव किया कि ये अभी भी ए का एजेंट है। तो इस तरह से सी जो है ए को बाइंड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। रीज़न उसका ये है कि एफर्मेशन है उसके पास कि बी जो है वो ए का एजेंट है, और ए ने कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन सी को नहीं दी है कि ये मेरा एजेंट अब नहीं है। तो ये है एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। थर्ड है एजेंसी बाय नेसेसिटी। Owing to the exigencies of circumstances, the law confers agency on some person to act as an agent of another person। यानी circumstances इस तरह के हो जाते हैं कि जब एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन के एजेंट की तरह से एक्ट करता है। इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं? पहली बात, देयर मस्ट बी एन एक्चुअल एंड डेफिनेट नेसेसिटी फॉर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। सच में कोई ऐसी ज़रूरत अराइज हुई हो। दूसरा, जो भी अवेलेबल टाइम है उस अवेलेबल टाइम में उसके पास इतना समय ना हो कि उसने इंस्ट्रक्शंस, प्रिंसिपल के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको ऑब्टेन किया हो, उसके पास इतना समय नहीं हो, इम्पॉसिबल हो। और थर्ड ये है कि उस पर्सन ने एज एन एजेंट जो भी एक्ट किया है वो उसका एक्ट जो है बोनाफाइड है। ये था दूसरी तरह की एजेंसी। तीसरी तरह की जो इम्प्लाइड एजेंसीज होती हैं वो होती हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब होता है सब्सीक्वेंट एडॉप्शन या फिर अफर्मेशन बाय ए पर्सन। यानी किसी एजेंट ने मान लीजिए कोई अनऑथोराइज्ड एक्ट किया है अपने प्रिंसिपल की अथॉरिटी के बिना, और बाद में जब ये चीज़ प्रिंसिपल के नॉलेज में आती है, और प्रिंसिपल के पास दो रास्ते होते हैं कि चाहे तो वो उसको अफर्म करे, चाहे वो उसको रिजेक्ट करे। अगर प्रिंसिपल उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अफर्म कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं रेटिफिकेशन। जैसे एज पर द लॉ हम ये कहते हैं कि बाय रेटिफिकेशन मीन्स वेयर एक्ट्स आर डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बट विदाउट हिज नॉलेज और अथॉरिटी। तो प्रिंसिपल जो है वो चाहे तो इसको अफर्म कर सकता है या वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि रेटिफिकेशन जो है वो हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव होता है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब फ्रॉम दी बैक डेट। ये ऐसा नहीं है कि जिस डेट पे आपने उसको एक्सेप्ट किया है उसी डेट से एप्लीकेबल होगा, नहीं। जिस डेट से एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बैक डेट से, उसी डेट से आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। या आप ये कहिए कि प्रिंसिपल जो है उसी डेट से बाइंड है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए। रेटिफिकेशन इज़ ऑलवेज रेट्रोस्पेक्टिव। अब बारी आती है कि वैलिड रेटिफिकेशन के लिए क्या क्या एसेंशियल पॉइंट्स हैं। देखिए, द एजेंट जो भी किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पे काम कर रहा है, उस केस में जो प्रिंसिपल है ये मस्ट बी आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। आइडेंटिफाइबल का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस समय एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, प्रिंसिपल जो है वो उस समय एग्जिस्ट कर रहा है, प्रिंसिपल जो है उस समय पिक्चर में है, आइडेंटिफाइबल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए एक प्रिंसिपल है, बी उसका एजेंट है, और सी जो है एक थर्ड पार्टी है। बी ने सी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया 100 बेल्स ऑफ कॉटन की परचेज़ करने के लिए। अब ए की नॉलेज में ये चीज़ नहीं है,
जो कि प्रिंसिपल है, लेकिन बी जो कि एजेंट है उसने सी को ये चीज़ क्लियर की है कि मैं ए के बिहाफ पर एक्ट कर रहा हूँ, और उसने बताया है कि मैं फला बंदा यानी ए के एजेंट के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से अगर बाद में क्या हुआ कि बाद में बेल्स के रेट जो हैं वो रिवाइज हो गए, और ये चीज़ नॉलेज में भी आ गई ए के, जो कि प्रिंसिपल था। अब ए ने क्या किया कि उस चीज़ को अफर्म कर दिया, उस एक्ट को रेटिफाई कर दिया। सी ने कॉन्ट्रैक्ट को करने से मना कर दिया, क्योंकि सी ने ये कहा कि मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था मैंने बी के साथ किया था, मुझे नहीं पता कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ए के साथ कर रहा हूँ या ए जो है वो बी का, या ए जो है वो प्रिंसिपल है, बी जो है एजेंट है। लेकिन सी जो है वो इस एक्ट से बाइंड होगा, सी को वो 100 बेल्स जो हैं कॉटन की वो देनी होंगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे जो आप प्रिंसिपल है वो आइडेंटिफाइबल था। सेकंड एसेंशियल इसका आता है वैलिड रेक्टिफिकेशन के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल। जैसे मान लीजिए हम बात करें अगर कंपनी जिस समय फॉर्म होती है, कंपनी के फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी के जो भी प्रोमोटर्स हैं वो कंपनी के लिए काम करते हैं। तो प्रोमोटर्स अगर कोई भी काम करते हैं कंपनी के लिए, बाद में कंपनी एस्टेब्लिश होने के बाद भी उन एक्ट्स को रेटिफाई नहीं कर सकती, क्योंकि जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे उस समय पे कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं थी। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते समय प्रिंसिपल का उस समय एग्जिस्टेंस में होना ज़रूरी है। थर्ड है प्रिंसिपल शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम व्हेन द एक्ट वाज डन एज वेल एज एट द टाइम ऑफ रेटिफिकेशन। दोनों ही समय पे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट करने का टाइम हो या रेटिफिकेशन का टाइम हो, आपका प्रिंसिपल जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कॉम्पिटेंसी कहाँ से आती है? अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि कॉम्पिटेंसी आती है कि प्रिंसिपल जो है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, प्रिंसिपल जो है उसकी एज जो है मैच्योरिटी की एज होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रिंसिपल जो है पहले माइनर की एज में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले और बाद में मेजर होकर उसको रेटिफाई कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रिंसिपल शुड बी कॉम्पिटेंट at the time of contract and at the time of ratification as well. Then full knowledge of all relevant facts, जितने भी relevant facts हैं उनका full disclosure जो है होना चाहिए। जैसे कि for example A ने B को एक contract दिया कि आप मेरी ये जो estate है इस state को sale कर दीजिए। A ने B की स्टेट का एक सर्वे किया और उसने ये पाया कि इस स्टेट के अंदर माइंस हैं, खदान होती है ना, माइंस हैं। तो उसने ये फैक्ट जो है प्रिंसिपल यानी ए से छुपाया और उसने ये कहा कि आपका ये जो स्टेट है इसको मैं परचेज़ कर लेता हूँ, और उसने अपने नाम से उस स्टेट को परचेज़ कर लिया। उसने फुल डिस्क्लोज़र नहीं किया फैक्ट्स का, उसने प्रिंसिपल को ये बात नहीं बताई, प्रिंसिपल से ये छुपाया कि इसमें माइंस हैं। बाद में अब प्रिंसिपल को जब ये बात पता लगी तो प्रिंसिपल के पास सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो वो पूरा का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेप्यूडिएट कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है, या वो चाहे तो अफर्म कर सकता है, लेकिन जो भी वहाँ से फ़ायदा हुआ है माइंस से, उस फ़ायदे में से अपना हिस्सा वो जो है डिमांड कर सकता है। तो वैलिड रेटिफिकेशन के लिए फुल नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है विद इन द रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम क्या है, ये डिपेंड करता है केस टू केस, डिपेंड करता है जो उस समय सर्कमस्टेंसेस हैं, उन सर्कमस्टेंसेस में रीजनेबल टाइम क्या है, लेकिन वैलिड रेटिफिकेशन हमेशा रीजनेबल टाइम में ही हो सकता है। फिर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ द रेटिफिकेशन मस्ट बी ऑफ होल ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन है वो एज ए होल ही एक्सेप्ट की जा सकती है, ओनली ए पार्ट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। या तो आप पूरी ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट करोगे या आप पूरी ही ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट करोगे। फिर नो डैमेज टू दी थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को कोई भी उस ट्रांजैक्शन से डैमेज नहीं होना चाहिए, उस रेटिफिकेशन से थर्ड पार्टी को किसी भी तरह का डैमेज नहीं होना चाहिए। इसी बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें। जैसे ए प्रिंसिपल है, बी उसका एजेंट है, जो सी है थर्ड पार्टी वो नोटिस दे देता है बी को कि आप जो है इस जॉब से आपको निकाला जाता है, और बाद में ए उसको रेटिफाई कर देता है, सी के एक्ट को रेटिफाई कर देता है।
तो ये एक्ट जो है वो रेटिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो एजेंट है उसको पर्सनल डैमेज जो हैं वो हो रहे हैं। तो कोई भी पर्सनल डैमेज जो है वो थर्ड पार्टी को नहीं होना चाहिए, एजेंट को नहीं होना चाहिए। तो जो भी डैमेज है वो वैलिड रेटिफिकेशन के लिए सही नहीं है। देन एक्ट टू बी रेटिफाइड मस्ट बी लॉफुल। जो एक्ट है जो भी आप रेटिफाई कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एक चेक जो है काट के दिया बी को, बी ने उसके ऊपर आपके फॉर्ज्ड साइन कर दिए, यानी नकली जाली हस्ताक्षर कर दिए और उसको जमा करा दिया बैंक में। बाद में आप उसको रेटिफाई नहीं कर सकते उस एक्ट को, क्योंकि लॉ ये कहता है कि फॉर्जरी इज़ एन ऑफेंस। लॉ की नज़र में फॉर्जरी एक ऑफेंस है, तो इस तरह से आप इस एक्ट को वैलिडेट नहीं कर सकते। एक्ट मस्ट बी लॉफुल। लास्ट है इसमें, एक्ट टू बी रेटिफाइड शुड बी विद इन द पावर ऑफ द प्रिंसिपल। जो चीज़ प्रिंसिपल की पावर में ही नहीं है वो उसको रेटिफाई भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई क्लॉज कंपनी के अल्ट्रा वायर्स से बाहर है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते और उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता। बाद में भी उसको रेटिफाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजर के एक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकते अगर वो अल्ट्रा वायर्स है। तो ये थे आपके क्रिएशन ऑफ एजेंसी। इसी में ही एक लास्ट टाइप और आता है, क्रिएशन ऑफ एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें जैसे मान लीजिए हम पार्टनरशिप की बात करें, तो जिस समय हम पार्टनरशिप में आते हैं या ये कहिए कि पार्टनरशिप में जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑटोमेटिकली जो भी आपके पर्सन्स, जो भी आपके पार्टनर्स हैं वो आपस में एक दूसरे का एजेंट जो हैं वो बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंट्स की, कि एजेंट्स जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं। मेनली हम यहाँ पर दो तरह के एजेंट्स की बात करेंगे। एक तो वो दो तरह से हम क्लासिफिकेशन करेंगे एजेंट्स की। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी और दूसरा है नेचर ऑफ वर्क। पहली बात आती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी, यानी किसके पास कितनी अथॉरिटी है, कम अथॉरिटी है या ज़्यादा अथॉरिटी है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं जनरल एजेंट। जनरल एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए एम्प्लॉय किया जाता है। तो सर्टनली इनका जो एक्सटेंट है अथॉरिटी का वो एक्सटेंट इनका कम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैनेजर ऑफ ए कंपनी। जनरल एजेंट्स जो हैं इनको एक पर्टिकुलर बिजनेस की जो भी आपकी जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं उन जनरल रिक्वायरमेंट्स के लिए एम्प्लॉय किया जाता है। सेकेंड है आपका स्पेशल एजेंट्स। स्पेशल एजेंट्स वो हैं कि जो कि किसी पर्टिकुलर एक्ट को या किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को देखने के लिए ही किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी मोटर कार को सेल करने के लिए किसी एजेंट को एम्प्लॉय किया, ये एक स्पेसिफिक तरह का एजेंट हो जाता है। और थर्ड है आपका यूनिवर्सल एजेंट। इन लोगों की जो अथॉरिटी है ये अनलिमिटेड होती है और ये एक्सटेंसिव पावर को एंजॉय करते हैं, और जो भी एक्ट प्रिंसिपल कर सकता है, हर तरह का एक्ट ये प्रिंसिपल के बिहाफ पे बिजनेस में कर सकते हैं। तो जनरल एजेंट, स्पेसिफिक एजेंट, यूनिवर्सल एजेंट, ये थे आपके ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी। और उसके बाद इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क में हम बात करेंगे मर्केंटाइल एजेंट्स की और नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स की। मर्केंटाइल एजेंट्स में जैसे कि ब्रोकर्स आते हैं। ब्रोकर्स क्या करते हैं कि कमीशन के बेसिस पे वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बारगेन्स करते हैं, सेल्स और परचेज़ के लिए, और उसके बाद उस बारगेन के लिए, प्राइस नेगोशिएशन के लिए वो अपना कमीशन जो है वो चार्ज करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी मर्केंटाइल एजेंट्स होते हैं ये सारे के सारे कमीशन बेसिस पर ही काम करते हैं। सेकेंड इज़ फैक्टर्स। फैक्टर्स वो होते हैं जिनके पास गुड्स जो हैं रहती हैं, जिनके पोजेशन में गुड्स होती हैं, जो कि गुड्स को बाय करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, गुड्स को प्लेज भी कर सकते हैं, गुड्स के ऊपर उनके पास गुड्स के लिए लीन भी होता है और वो गुड्स में डील करते हैं, और एक फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन जो है वो इसके लिए बदले में प्रिंसिपल से पाते हैं। थर्ड है ऑक्शनर। जब भी आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं तो ऑक्शनर के थ्रू आप सेल कर सकते हैं। तो पब्लिक ऑप्शन के लिए आप ऑक्शनर को अपॉइंट करते हैं जो कि एक कमीशन लेकर आपसे
आपके लिए ऑक्शन ऑर्गेनाइज करता है। डेल क्रेडिटर एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो कि पेमेंट की गारंटी देते हैं और पेमेंट यानी बैड डेट्स को वो रिकवर करते हैं और इसके लिए जो भी एक्स्ट्रा स्पेशल कमीशन चार्जेस बनते हैं वो चार्ज करते हैं। कमीशन एजेंट्स ये कोई अलग तरह के एजेंट्स नहीं हैं। जनरली ये बाय और सेल करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल और अपनी सर्विसेज के लिए ये कमीशन जो है वो चार्ज करते हैं। बैंकर्स जो काम करते हैं वो पैसे को जमा करने का करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में वो आपके बिहाफ पे चेक को कलेक्ट करते हैं। जो कमर्शियल सिक्योरिटीज़ हैं उनको बाय एंड सेल भी करते हैं। इसलिए जो क्लासिफिकेशन है बैंकर्स को भी मर्केंटाइल एजेंट्स की कैटेगरी में रखा जा सकता है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है आपकी नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स की। तो नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स में वो एजेंट्स आते हैं जो कि मर्केंटाइल एजेंट्स के परव्यू में नहीं आते, लेकिन उनके एक्ट्स जो हैं वो इस तरह के हैं जैसे एक एजेंट एक्ट करता है। जैसे एडवोकेट आपके लिए एज एजेंट काम करता है, आपकी वाइफ आपके लिए एज एजेंट काम करती है। तो ये थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंट। That is all for today. Today we have discussed the meaning of creation of agency. Today we have discussed that who can be agent, who can be the principal. Today we have discussed the proof, constitution and status of agency. Other than that, we have discussed that how the agency can be created and classification of agents. So rest we will discuss in our upcoming lecture, in our upcoming video. That's all for the day. Thank you so much.